کہ انہیں نہ صرف زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جنسی زیادتی کا، بلکہ انہیں اغوا بھی کیا گیا اور پھر ان سے پیسے بھی مانگے گئے، یعنی جس کو اغوا برائے تاوان آپ کہتے ہیں کہ تاوان بھی وصول کیا گیا کہ ہمیں ان سے پیسے چاہیے۔ اب یہ الگ الگ طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں نے جو ایف آئی آر پڑھی وہ انتہائی خوفناک ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ یہ غیر ملکی خواتین کون ہیں؟ اگر میں ایک سیکوینس کے ساتھ آؤں تو کہانی اصل میں یہ ہے کہ رضا ڈار نام کا ایک شخص ہے، یہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نواسا ہے، ان کی بیٹی کا بیٹا ہے، جبکہ مریم نواز کا، نواز شریف کا سب کا ہی رشتہ دار ہے، کیونکہ یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، اور مریم نواز کی کیبنٹ کے اندر بھی اس کا ایک ماموں جو ہے وہ منسٹر ہے، اور یعنی اس قسم کی رشتہ داری ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ شریف خاندان جب آتا ہے تو پورا جتھا ہی لے کر آتا ہے، یعنی یہ اکیلا ڈار نہیں ہے، یہ پوری ڈار ہے، بہت سارے ڈار ہیں اس کے اندر۔ تو یہ رضا ڈار جو ہے یہ خواتین کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اور اس کی ملاقاتیں بھی پہلے خواتین کے ساتھ ہوئی تھی، ان میں سے خاص طور پہ ایک خاتون جن کا تعلق جو ہے وہ ہالینڈ سے ہے، تو وہ جو خاتون ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی تھا، اور ان کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے اندر کوئی انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی۔ کچھ معاملات پہ ان کے بیچ میں چھوٹے موٹے کاروباری اختلافات چل رہے تھے۔ تو رضا ڈار نے، جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے، اس نے ویزے ارینج کیے 2 خواتین کے لیے، کیونکہ اس کو پاکستان بلوایا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا خاتون کو کہ اس نے کہا جی میں اپنی ایک سہیلی کو بھی لے کر آنا چاہتی ہوں، وینزویلا سے ایک اور خاتون تھی، تو اس کو بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ تو یہ 2 خواتین ہیں، ان کا ویزا ارینج کیا گیا اور ان کے ٹکٹ ارینج کیے گئے۔ رضا ڈار نے اور اس کے باس نے، انہوں نے مل کر یہ کیا، اور پھر انہیں پاکستان میں ایئرپورٹ پہ پروٹوکول لگوا کر ریسیو کیا گیا۔ ان کے اپنے گارڈز وہاں پہ موجود تھے، ان کا پروٹوکول وہاں پہ موجود تھا، تو بڑے شاندار طریقے سے ان خواتین کو لایا گیا، پھر ان کو گھمایا پھرایا بھی گیا اسلام آباد، پنڈی شنڈی، ادھر ادھر۔ تو یہ خواتین کو شروع میں آئیڈیا تھا کہ شاید ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد لین دین کے تنازع پر جو اب تک بات سمجھ آئی ہے، انہوں نے اغوا کر لیا ان خواتین کو اور لے جا کے ان کو حبس بیجا میں رکھ لیا، انہیں یرغمال بنا لیا لاہور کے ایک گھر میں ڈی ایچ اے میں، اور نہ صرف انہیں یرغمال بنا لیا بلکہ وہاں پہ اور بندے بھی لے آئے، اور ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جبری زیادتی کروائی گئی، جن میں سے ایک خاتون کے ساتھ 3 افراد نے جبری طور پہ زیادتی کی، زخمی بھی کیا، اور بہت نازیبہ، بہت ہی گھٹیا ہے وہ ایف آئی آر۔ اگر آپ پڑھیں تو یعنی میں وہ پڑھ کے سنا بھی نہیں سکتا، وہ بتا بھی نہیں سکتا، وہ اتنی گھٹیا ایف آئی آر ہے۔ اب وہ کیونکہ یورپ سے اور لیٹن امریکہ سے آئی ہوئی خواتین ہیں، تو ان کے لیے نا بولنا اور لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، انہوں نے ایک ایک لفظ کھل کے لکھ دیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور کس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کھل کر لکھ دی ہے۔ ان کے معاشرے کے اندر وہ پورا کرائم کھل کر ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں، تو پاکستان کے اندر تو تھوڑا لگی لپٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کو چھپاتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں، انہوں نے سارا کچھ ہی بتایا۔ اور اس کے بعد جناب وہ خواتین کو کہا گیا کہ آپ $15 لاکھ وہ منگوائیں اور ہمیں دیں۔ اب یہ ایک طرح کا تاوان ہے کہ خواتین وہاں پہ حبس بیجا میں ہیں، ان کے ساتھ جنسی جبری طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مار دیں گے اور تمہارے جو آرگنز ہیں، جو تمہارے جسم کے اعضاء ہیں اندر سے، وہ نکال کے ہم بیچ دیں گے، ہم پیسہ پورا کر لیں گے، اور دھمکایا بھی بہت گیا خواتین کو، انہوں نے سارا کچھ بتایا اس ایف آئی آر کے، تو بڑی خوفناک ایف آئی آر ہے۔ پھر جناب ان کے والدین سے رابطہ کروایا گیا خواتین کا کہ $15 لاکھ کا ارینجمنٹ کیا جائے، $1.5 ملین، اور وہ دیا جائے رضا ڈار کو اور اس کے باس کو، ان لوگوں کو۔ اب یہ جو خاتون کے والدین ہیں انہوں نے رابطہ کیا، پھر امبیسی کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ اب میری انفارمیشن کے مطابق پولیس نے فوری طور پہ کاروائی نہیں کی، یہ بعد میں مریم نواز نے اور ان کے لوگوں نے ڈرامہ کر دیا، جی 2 گھنٹے کے اندر کاروائی کر لی، بازیاب کروا لیا، بندے پکڑ لیے، یہ سب جھوٹ ہے، پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب امبیسی انوالو ہوتی ہے تو پھر ایجنسیاں بھی انوالو ہوتی ہیں، اور وہ ہر طرف جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے، امبیسی نے پھر آگاہ کیا، ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں باقاعدہ، تو وہاں جب انہوں نے بتایا تو فوری طور پہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا۔ پھر پنجاب حکومت کو ڈنڈا آیا، فوری طور پہ پولیس نے جا کے بازیابی کروائی، خواتین کو بازیاب کروایا گیا وہاں سے، اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ جو رضا ڈار ہے، یہ جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہے، یہ پکڑا گیا اور باقی ملزمان بھی پکڑے گئے ہیں، اور خواتین برآمد ہو چکی ہیں، ان کا میڈیکل کروایا جا چکا ہے، اور میڈیکل کروانے کے بعد انہیں جمعے والے دن یعنی آج کے دن
वापस उनके मुल्क में रवाना कर दिया जाएगा। और मामला जो है वो कारोबारी था, क्योंकि देखे ना, इसहाक डार का खानदान पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बेटे भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसहाक डार भी बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, नवाज शरीफ भी करता है, नवाज शरीफ के बेटे भी करते हैं, सारा खानदान पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करता है। हालांकि ये जाके पाकिस्तानियों को ये कहता है इसहाक डार के आप मुहिब वतन होने का सबूत दें और अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर जाएं, लेकिन उसका नवासा पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो इसहाक डार के नवासे ने पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का एक नया तरीका ढूंढा कि औरतों को लेकर आओ, उन्हें अगवा करो, फिर उनका तावान मंगवाओ, तो ये एक तरह की सरमायाकारी है। इस तरह अब ये डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएंगे। शर्म भी नहीं आती इन्हें, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अपने इख्तियारात का हमेशा नाजायज इस्तेमाल करते चले आए, हमेशा किया है इन्होंने। मैं खबरें लाकर देता था एक दौर में इनके बारे में, बहुत सारी इस खानदान के बारे में, लेकिन मीडिया छापता ही नहीं था। यानी मुझे बाकायदा लिख कर दे दिया जाता था इदारे की जानिब से कि नॉट रिक्वायर्ड, कि ये खबर हम छाप ही नहीं सकते। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो खबरें चलती नहीं थी। माफिया की तरह ये खानदान डील करता है। बहरहाल वो खवातीन आज वापस चली जाएंगी, उनका मेडिकल भी हो गया, सारे सबूत जो है वो इकट्ठे कर लिए गए। लेकिन कुछ सीनियर पुलिस एहलकारों से जब बात हुई, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स की, तो उनको अंदाजा हुआ कि बहुत दबाव है। जो मुलजिम है उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ रखा गया है और वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल उसे दिया जा रहा है, उसे हर तरह की सहूलत दी जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि 2-4-5 दिन की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा, तुम घर चले जाओगे। जज आसिफ का बेटा 2 खवातीन को सड़क पे कत्ल करके घर चला गया, तो ये भी घर चले जाएंगे, इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इन चीजों को अभी तक मैनेज किया जा रहा है। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। मैं एक सवाल करना चाह रहा था चट्टा साहब से, जो सीटीडी को हेड करते हैं, जो बहुत सारे पुलिस मुकाबले करती है पंजाब में, जिन पे बहुत शोर मचा हुआ है कि ये जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। तो चट्टा साहब बताएं ना, इनमें से आप किसको हाफ फ्राई करेंगे और किसको फुल फ्राई करेंगे? जब आप पकड़ते हैं किसी आदि मुजरिम को या किसी भी बंदे को जो अपने इख्तियारात का और ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो आप मावरा अदालत कत्ल कर देते हैं। अब आपने एक बड़े खानदान का बंदा पकड़ा है, एक बंदा तो पकड़ा भी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बारे में मालूमात आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी, वो कौन है जो बॉस है। लेकिन इसहाक डार का नवासा पकड़ा है, तो मुझे ये बताएं कि आप इसको हाफ फ्राई करेंगे या फुल फ्राई करेंगे, या फिर आप इसके नेफे में पिस्तौल चलाएंगे, करेंगे क्या आप? इसहाक डार साहब को फौरी तौर पे इस मामले को देखते हुए या तो इनको आग करें, अपने आप से अलग करें, ऐलाने ला ताल्लुकी करें इस खानदान के साथ, या फिर इसहाक डार साहब जो है वो फिर रिजाइन करें। और जो इस बच्चे का मामू है, जो इसहाक डार का बेटा है, उसको भी पंजाब के अंदर मिनिस्टर लगाया हुआ है। तो इस खानदान की तो जब भी नवाज शरीफ आता है हमेशा मौजें ही लगी रहती हैं। तो सीटीडी का भी इम्तिहान है। ये तो कोई ना मेडिकल करवाते हैं, ना डीएनए करवाते हैं, ना कोई और चीज करवाते हैं, टक करके बंदा पार कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि अमीरजादे पकड़े गए हैं, तो अभी तक कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी नाजरीन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर फैसला कर लिया कि वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं। अब जरा ये फैसला उन्होंने जो किया, उसकी वजूहात उन्होंने बताई, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी, आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ हम खड़े, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की उमंगों, हक खुद इरादियत और जमहूरी हकूक के साथ गैर मुतजलजल यकजहती का इजहार करते हुए मौजूदा हालात में इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला करती है हमारी जमात। यह कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और उसूली मौक़िफ़ है। आजाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हजारों शहरी रावला कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज मुतालबात के हक में धरना दिए बैठे हैं। हुकूमती ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। पंजाब से आजाद कश्मीर को अशिया है खुर्दोनोश, जो खाने पीने की चीजें जा रही हैं, उनकी तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऐसे हालात में कश्मीरी अवाम को मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय उनके मसाइल का फौरी और मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि मौजूदा इकदाम आजाद जम्मू और कश्मीर की आईनी, जमहूरी और सियासी शनाख्त को मजरू कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जो आजाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दरमियान मौजूद बुनियादी फर्क को मिटाने का बायस बन रहा है। यह तर्ज अमल पाकिस्तान की तारीखी कश्मीर पॉलिसी के लिए भी नुकसानदेह है। जब कश्मीरी अवाम खुद एहतजाज पर हों, इनकी नुमाइंदा आवाजों को दबाया जा रहा हो, सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हों, क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा हो, मीडिया पर कदगने हों और इजहार राय की आजादी महदूद कर दी गई हो, तो ऐसे माहौल में इंतखाबी अमल
अपनी साख और मानियत खो देता है, यानी कोई मानी नहीं है इस इलेक्शन को करवाने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीरी अवाम की आवाज को नजरअंदाज करके इक्तदार की सियासत नहीं करेगी। हमारी अव्वलीन तरजीह कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक और उनके जमहूरी मुतालबात और इंसाफ पर मबनी सियासी अमल की हमायत है। बहरहाल हम इंतखाबात नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लंबा चौड़ा और भी स्टेटमेंट है, बड़ा डिटेल के अंदर उन्होंने बताया। देखिए, जो तहरीक इंसाफ का फैसला है उसको एक तबका बहुत ज्यादा सराह रहा है, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, और एक तबका कह रहा है कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लोग कह रहे हैं अच्छा किया, उनके आर्गुमेंट यह है कि हुकूमत तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने कभी भी नहीं बनाकर देनी थी। नंबर 2, ये इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन है जो होने से पहले ही बहुत सारे तनाज़ात में फंस गए हैं। नंबर 3 यह है कि कश्मीरी अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, वहां पर जुल्म और जबर हो रहा है, और इलेक्शन के नाम के ऊपर चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात अपने आप को इलेक्शन से बाहर करती है तो पूरे के पूरे इलेक्शन और उसके सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ खड़े होना चाहिए और इक्तदार की सियासत नहीं करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि किसी भी इलेक्शन का कभी भी सियासी जमात को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उनका आर्गुमेंट यह है कि अवामी नुमाइंदगी बिल्कुल सिफर हो जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो जाती है, तो जो 4 सीटें उन्होंने जीतनी है वो भी उन्हें नहीं मिलेंगी और उन जमातों को मिल जाएगी, या फ्री हैंड मिल जाएगा उन जमातों को जो इक्तदार पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये इस किस्म की जो है वो दूसरी तरफ की आवाज है। तो मेरे ख्याल में दोनों लोगों की बात में लॉजिक है, तो वक्त साबित करेगा कि फैसला ठीक था या गलत था, लेकिन मेरे ख्याल में इन इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अब इलेक्शन पे पैसे जाया करने की बजाय ना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान और अलीम खान, ये 4 बंदे बैठे और आपस में सीटें तकसीम कर लें। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले को भी बिठा लें साथ, तो आपस में सीटें तकसीम कर लेंगे, ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी, और अपने वजारतें और वजारत आला और ये सारा तकसीम कर लें। इतना पैसा क्यों खर्च करना है इलेक्शन पे, जब पूरा का पूरा इलेक्शन एक ही जमात लड़ रही है, ये सारे एक जमात है, यानी आईपीपी भी वही है, पीपल्स पार्टी भी वही है, पीएमएल-एन भी वही है, तो फजल रहमान भी वही है। अब इनके तो इंटरनल इलेक्शन हो गए ना, बाहर से तो कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। इनके खिलाफ तो ना कोई अवामी पॉलिटिकल पार्टी है और ना इनके मुकाबले में कोई इलेक्शन हो रहा है, लिहाजा ये तो वन साइडेड है। तो आपने अगर आपस में इलेक्शन लड़ना है तो लड़ने की बजाय घर में बैठ के आप फैसला कर लें, सीटें आपस में आप बांट लें, ताकि कौम का पैसा भी बच जाए और पाकिस्तान का और कश्मीरियों का वक्त भी बच जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है। फैसला किस तरह का आने वाले दिनों में पता चलेगा। सोहेल अफरीदी साहब का यह पता चला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कौमी कॉन्फ्रेंस जो थी जेलों में इस्लाहात के हवाले से, वैसे ये मजाक ही किया गया पाकिस्तानियों के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए था और कॉन्फ्रेंस करवाने वालों को शर्म आनी चाहिए थी कि क्या करने जा रहे हैं वो। यानी कोई पाकिस्तान में जेलों की हालत है जो आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कैदी पाकिस्तान का इमरान खान है जो साबिक वजीर आजम है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने जेल में होने के बावजूद वोट दिए। 8 महीने से आपने उसकी मुलाकात बंद की हुई है, उसकी आंख आपने जाया कर दी, इलाज आप उसको सही तरह करवा नहीं रहे, हर चीज पे आपने शिद्दत से पाबंदी लगाई हुई है। हर हफ्ते वहां पे एहतजाज होता है और आप कह रहे हैं जी अब जेलों के अंदर इस्लाहात लेकर आते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको इस्लाहात नहीं कहते। उधर जो झूठी कहानियां सुनाई है सबने अपनी अपनी, मेरे साथ ये हो गया, मरियम नवाज ने कहा जी मेरे साथ वो हो गया, जो झूठ बोल बोल के ये जब बोलती है झूठ बोलती है। मरियम नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी खातून को इतना झूठ बोलता हुआ नहीं देखा जितना मैंने मरियम नवाज को बोलते हुए देखा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कभी किसी खातून को झूठ बोलते हुए नहीं। खवातीन झूठ बोलती है ना, पकड़ी जाती है नॉर्मली, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कहां प्रॉपर्टियां निकल के आ गई। आप देखें कैसा झूठ टका के बोला था। फिर कैलबी फोंट आ गया, उसके ऊपर झूठ बोल दिया। जेल की कहानियां, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर दिए, झूठ बोल दिया। और जनाब मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने वीडियो खुद देखी अपनी आंखों से, मैं तो हैरान हो जाता हूं जैसी सहूलियात इनको भी असर थी। यहां कौम को ये रोज हो गया, अजीब अजीब कहानियां सुना देते हैं। बहुत ही अजीब लोग हैं, बहुत अजीब तरीन लोग हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने वहां पर इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाई, लेकिन देखें तरीकाकार क्या था। एक बात नादरीन आपको जरा मैं समझा देता हूं। इमरान खान से मुलाकातों का एक दिन नहीं है, सिर्फ मंगल नहीं है जब बहनें जाती हैं, 2 दिन है, एक मंगल एक जुमेरात। मंगल को बहनों का दिन था, फैमिली का दिन था,
और जुमेरात को पार्टी का, दोस्तों का या वकला का दिन था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल को क्योंकि बहनों ने आना था, तो मंगल आज भी वहां पे एहतजाज होता है, धरना दिया जाता है। यानी जो बहनों की ड्यूटी है, बहनें करती जा रही हैं और वो हर मंगल को आती हैं। लेकिन जो पार्टी की ड्यूटी थी कि हर जुमेरात को उन्होंने भी आना था, तो जुमेरात को आप देखें वहां कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं आता। सुहेल आफरीदी चंद हफ्तों तक, यानी 10-12 हफ्तों तक गए जुमेरात को, उसके बाद अब कोई भी नहीं जाता, कोई और जाता ही नहीं है जुमेरात को। यानी आज जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनें इमरान खान के साथ वफादार नहीं है या वो खराबी पैदा कर रही हैं, वो सिर्फ एक बात सोचें कि बहनों के दिन पे बहनें पहुंचती हैं मंगल वाले दिन, लेकिन पार्टी के दिन पे पार्टी नहीं पहुंच रही अब जुमेरात वाले दिन, या बाकी लोग नहीं पहुंच रहे अब जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाले दिन ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, कौमी कॉन्फ्रेंस। तो सुहेल आफरीदी साहब को करना पता क्या चाहिए था? उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था अडियाला जेल, सुबह 11 बजे 12 बजे, 2 घंटे कम से कम उनको जेल के बाहर खड़े होना चाहिए था, और वहां से उनको वापस जाना चाहिए था कौमी कॉन्फ्रेंस में, और वहां खड़े होकर उन्हें कहना चाहिए था, जी मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मेरी पार्टी का सरबराह और साबिक वजीर आजम और हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर बंद है, और मैं ये अदालत का ऑर्डर लेकर गया था, इस ऑर्डर में लिखा है कि मुलाकात करवाई जाए मेरी। तो चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको बताने आया हूं कि मैं वहां 2 घंटे आज भी खड़ा होकर आया हूं, और लगभग 2 दर्जन मरतबा मैं पहले भी जा चुका हूं, 20 मरतबा तो मैं गया हूं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो जेल इस्लाहत तो बाद की बात है, पहले आप मेरी मुलाकात का हुक्म जारी करें। यह होना चाहिए था। ये तरीकाकार है ना, फंसाना है आपने, उनको ऐसे फंसाए। तरीका होता है, आप कहें जी मैं अभी होकर आया हूं, ये देखें मेरी हालत, ये मेरे हाथ में आप कानूनी कागज चेक करें, ये अदालत का हुक्म है, मैं अभी जेल से आ रहा हूं, इमरान खान से मिलने गया था, अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत के हुक्म को उन्होंने जूतों के नोक के ऊपर रखा है, मेरी उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, बताएं मैं किधर जाऊं? आप यहां पे जेल की इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वहां एक मुलाकात नहीं करवा रहे, और ये वजीर आला सामने बैठी हुई है आपके। तो सुहेल आफरीदी को अगर मैनेज करना था ना, तो इस तरीके से एक्सपोज कर देते। नादरीन, आजकल ना ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिंध ताश मुआहदे के बारे में अभी अभी पता चला है, शायद पहले इन्हें पता नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ना कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सिंध ताश मुआहदे की हसासियत का ऐसा लगता है इन्हें आज से पहले पता ही नहीं था, हालांकि हम कई महीनों से बता रहे हैं कि इंडिया आपके पानी पर कब्जा कर रहा है। भारत ने जब सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का बयान दिया था, जब ऐलान किया था, तो ये खामोश थे। जब उन्होंने पानी पर कब्जे का काम शुरू किया, ये खामोश थे। वो डिजाइन बनाते रहे, ये खामोश थे। वो कब्जा करना शुरू हो गए, ये खामोश थे। अब उसके ऊपर तेजी से काम जारी है और काम मुकम्मल करने की तरफ वो जा रहे हैं, तो इन्होंने रोला डाल दिया। इन्होंने रोला डाला तो क्या इनकी नीयत है पाकिस्तान में जो पानी का मसला उसको हल करने की? तो जो मौजूदा बजट आया ना पाकिस्तान में, इस वक्त जो बजट आया, वो बजट बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कितनी नीयत है पानी के मामलात पे, या पानी की जो किल्लत पैदा होने जा रही है उसको ठीक करने पे कितनी इनकी नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध ताश मुआहदे का नाम जो है ना, अपनी मशहूरी के लिए ले रहे हैं। ये सिर्फ इस मुआहदे का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये कोई नया एडवेंचर करके कोई तवज्जो हटाओ पॉलिसी करना चाहते हैं। सीरियस नहीं है ये। अगर ये सीरियस होते ना, तो मौजूदा बजट में पानी के सेक्टर में जो फंड्स है ना पाकिस्तान के बजट में, उनमें 27% मजीद कटौती कर दी गई है, यानी बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया। जितने पुराने आबी मंसूबे हैं उनको फंड्स की फराहमी बहुत हद तक बंद है, और कोई एक भी नया मंसूबा पानी की बचत के हवाले से इस हुकूमत ने मुतारिफ नहीं करवाया। अच्छा, हुकूमती इदारों ने जो डिमांड की थी पैसे की, उससे भी 42.5% कम रकम मुख्तस की गई है। मारीन का कहना है कि कम से कम 500 अरब हर साल इस मसले पे पाकिस्तान को खर्च करना चाहिए, जबकि इन्होंने बजट में रखा है 103 अरब, यानी लगभग 20% पैसा रखा है, और 80% पैसा इसमें कम रखा है। अगर इसी तरह से ये फंड देते रहे ना, और यही सिलसिला चलता रहा, तो याद रखिएगा माहिरीन के मुताबिक भाषा डैम 46 साल में, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 65 साल में, और कच्ची कैनाल अगले 100 साल के बाद या 1 सदी के बाद जाकर बनेगी। यह है नादरीन इनकी संजीदगी। कहानियां आप इनकी सुन लें, जितनी मर्जी आप इनकी कहानियां सुन लें। नादरीन, एक और किस्सा आया, साबिर शाकिर साहब ने यह खबर दी है। खबर यह भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं। ये मलका आलिया पंजाब की साबिर शाकिर साहब कहते हैं, तो वो आप जानते हैं कौन है मलका आलिया, टिकटॉकर कौन है। उन्होंने कहा जो इसके फ्लीट के अंदर एक गाड़ी थी बुलेट प्रूफ BMW 2016 मॉडल, गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है रिंग रोड पे, ड्राइवर गाड़ी से कूद गया
باہر نکل گیا, گاڑی جل کر راکھ ہو گئی. گاڑی ان کے ابا جی کو بہت پسند تھی, انہوں نے کہا کہ ایسی گاڑی چاہیے, بلٹ پروف BMW. تو جناب جو ایس نواز موٹرز ہیں ان کو کہا گیا کہ دوسری گاڑی دو اب ہمیں. انہوں نے کہا جی ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے, ہم کیوں دیں آپ کو دوسری گاڑی. تو پھر فوری طور پہ 2 مقدمات درج کر دیے گئے اور پھر پھینٹا بھی لگایا گیا, بلکہ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ 2 بندے بھی اٹھا لیے گئے. اب وہ جو بندے ہیں نا, ان کے والدین اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. وہ بیچارے میڈیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے رہا کروائے جائیں, اور صحافیوں سے کہہ رہے ہیں مدد کی اپیل ہے آپ سے, مہربانی کریں, یہ بہت طاقتور خاندان ہے, ہم کدھر پھنس گئے. یہ ہے ناظرین صورتحال. دیکھیں مریم نواز کا وہ جو جملہ تھا نا, وہ تو میں نے سن لیا تھا, آپ کو بھی سنوا دیا تھا, خریدا ہے بھائی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس جملے سے بھی زیادہ خوفناک ایک اور چیز تھی اس وقت, وہ میں نے پہلے توجہ نہیں دی, میں نے بعد میں سنا تو مجھے آئیڈیا ہوا. دیکھیں یہ جو جملہ تھا نا, یہ ایک عورت کا جملہ تھا. وہ ذاتی طور پہ شریف خاندان کے اتنی قریب ہے, ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملازمہ ہے مریم نواز کی, ملازمہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ نوکرانی ہے مریم کی, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خادماؤں کی طرح کبھی بیگ اٹھا لیا, کبھی یہ کر لیا, کبھی وہ کر لیا, بہت خدمت گزار ہے, تو وہ کچھ بھی کرے تو جائز ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن جب اس نے کہا نا کہ جہاز کی بات کرتے ہیں, خریدا ہے بھائی, اس کے بعد جو کہکے لگے نا ہال میں, پاکستان کے غریبوں کا کیسا مذاق اڑایا ان سب نے مل کے. یہ فارم 47 کے اوپر جو جعلی لوگ مسلط کیے گئے, یہ اس قابل سمجھتے ہیں قوم کو. خریدا ہے بھائی جہاز, اس کے بعد سارے ہنس رہے تھے, کہکے لگا رہے تھے. تو یہ جو کہکے تھے نا, انہوں نے میرے خیال میں اصل کام انہوں نے کیا ہے.